I am from Gaugras, Math Sub. Today I shall deliver lecture 12b, the pronoun, the kinds. Next point I shall write relative pronoun or conjunctive pronoun. So here I shall write, I think, the kind of pronouns, the kinds of pronoun. Number 8, I have already discussed in my previous videos. 12a. Now, three kinds of pronoun. Further, three kinds of pronoun I shall discuss here. So that 3 relative pronoun. Next pronoun will be interrogative pronoun and exclamatory pronoun. I shall discuss. So here I shall write 9, 10, 11. I think point number 9 will be there. So here I shall write 9. The kind of pronoun today I have taken conjunctive pronoun. Conjunctive pronoun. Conjunctive pronoun. In bracket I shall write relative pronoun. Relative pronoun. Conjunctive. Conjunction. Conjunction. Parts of speech. Conjunction. Conjunctive pronoun. Conjunctive pronoun. The spelling, I think I written wrong spelling here. Just I shall write the spelling conjunction. Conjunctive. This one will be the correct. Conjunctive pronoun. Conjunction. Junction. जंक्शन में को लगा दो, कंजंक्शन बन जाएगा. नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन. The same conjunction. From there I have taken conjunctive pronoun, relative pronoun. I am going to discuss here. Now, here I shall underline this one. Conjunctive pronoun or relative pronoun. What do you mean? Relative pronoun or conjunctive pronoun. Conjunctive pronoun or relative pronoun, what do you mean? Here conjunction. Conjunction, two simple sentences will be given. If you combine the two sentences by the mean of a conjunction, and that conjunction word will also be treated as relative pronoun, that conjunction will be treated as conjunctive pronoun. Now here I shall write think over. Think over following pair of sentences. Think over following pair of sentences. First pair I shall write here. I met Hari. I met Hari
Next sentence I shall write, Hari had just returned. First sentence, Roman 1. This is Roman 2. Think over following pair of sentences. First sentence I have written, I met Hari. I here personal pronoun of first person. Personal pronoun of first person I. I nominative केस में है. I means मैं. Meet, met. Met here past tense में है. हरी यहाँ पे प्रॉपर नाउन है. मैंने हरी से मिला. I met हरी. सेकेंड सेंटेंस, हरी हैड जस्ट रिटर्न्ड. तो हियर हरी ये प्रॉपर नाउन और नॉमिनेटिव केस में है. जस्ट मैंने अभी. हैड रिटर्न्ड ये पास्ट परफेक्ट टेंस में. पास्ट परफेक्ट टेंस का पास्ट परफेक्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब हैड होता है. और रिटर्न्ड हियर रिटर्न्ड थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब रिटर्न्ड. आई हैव रिटर्न. थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब रिटर्न्ड. आई हैव रिटर्न. रिटर्न्ड हियर इज पास्ट पार्टिसिपल. हरी हैड जस्ट रिटर्न्ड. इन हिंदी हरी अभी लौटा था. मैंने हरी से मिला. हरी अभी लौटा था. तो हियर two sentences are available. Both sentences are simple sentences. So here I shall write, these two simple sentences are combined together. These two simple sentences are combined together by a conjunction. By a conjunction. By a conjunction who in order to form a complex sentence. The complex sentence will be complex sentence will be I met Hari. Who had just returned. Full stop. Here I have written it. Once again I shall explain. Today I shall deliver lecture 12b, the pronoun, the kinds. सर्वनाम के प्रकार. पिछले वीडियो में हमने 8 kind of nouns I have already discussed here. In video number 12a, 8 kinds of noun I have already discussed.
Here I have taken point 9. 9 point I shall discuss about relative pronoun. Relative pronoun is also called a conjunctive pronoun. Relative pronoun, relation means संबंध. तो you can see here संबंध. क्या कहते हैं? संबंधवाचक सर्वनाम. रिलेटिव प्रोनाउन मीन्स हाँ संबंध बताएगा. और ये क्या है? कंजंक्टिव प्रोनाउन. इसको क्या है? कंजंक्शन. नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन. तो फ्रॉम देयर आई हैव टेकन कंजंक्टिव प्रोनाउन. कंजंक्टिव प्रोनाउन मीन्स कंजंक्शन से बना है. तो दो सिंपल सेंटेंस है. पहला सेंटेंस आई मेट हरी, मैंने हरी से मिला. सेकेंड सेंटेंस आई हैव टेकन हरी हैड जस्ट रिटर्न, हरी अभी अभी आया था. मैंने हरी से मिला, हरी अभी अभी आया था. तो टू सिंपल सेंटेंसेस आर अवेलेबल हियर. दी टू बोथ सिंपल सेंटेंसेस विल बी कंबाइंड टुगेदर by means of a conjunction who in order to form a complex sentence. So here I have formed here complex sentence. Complex sentence माने सम्मिश्र वाक्य. I met हरी, मैंने हरी से मिला. Who had just returned, जो अभी अभी आया था. मैंने हरी से मिला जो अभी अभी आया था. इसका हिंदी में बन गया. तो here you can see this who, the here I shall write the word who means कौन. But here in case of relative pronoun who means जो. जो की हिंदी वर्ड है. जो की थोड़ा अटपटा लगेगा. मैंने हरी से मिला जो अभी अभी आया था. तो जो की नहीं, मैंने हरी से मिला जो की अभी अभी आया था. तो अटपटा है, जो लिख दो. क्या है? जो. हु मीन्स क्या हो जाएगा? जो. तो हु एक रिलेटिव प्रोनाउन है या कंजक्टिव प्रोनाउन है. आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन हियर. तो द वर्ड हु, जो, कनेक्ट्स two simple sentences. The word who, जो connects two simple sentences. तो यहां देखो, एक सिंपल सेंटेंस आई मेट हरी, दूसरा सिंपल सेंटेंस हरी हैड जस्ट रिटर्न. इन दोनों सेंटेंस को हमने एक साथ कनेक्ट कर दिया, जोड़ दिया. क्या लेकर के? कंजंक्शन हमने लिया हु. तो हु से जोड़ा. आई मेट हरी, हरी है, और दो बार हरी है. दो बार हरी रिपीट ना हो. एक बार तो हरी, आई मेट हरी, तो मैंने हरी से मिला. तो हरी क्या है? प्रॉपर नाउन. हरी क्या है? प्रॉपर. तो एक बार हरी वर्ड का प्रयोग किया. अब दोबारा जो है इस सेंटेंस में देखो, दोबारा हरी. तो दोबारा हरी का प्रयोग ना हो, तो हरी के बदले में हमने क्या डाला? हु. तो हु क्या हो जाएगा? हरी के बदले में हु प्रोनाउन हो जाएगा. देखो हरी क्या है? प्रॉपर नाउन. तो हरी के बदले में हमने हु का प्रयोग किया. भाई देखो यह हरी है, तो आई मेट हरी. तो हियर आई हैव रिटन आई मेट हरी. ये कह रहा है कि हरी हैड जस्ट रिटर्न. तो इस हरी के बदले में हमने क्या डाल दिया? हु डाल दिया. तो हु हैड जस्ट रिटर्न. तो हरी के बदले में हुआ है ना. तो यह लिखो. आगे बता रहा हूं. द वर्ड हु, जो कनेक्ट टू सिंपल सेंटेंसेस. अच्छा, तो हरी के बदले में हु आया, उसके बारे में आई शैल डिस्कस लेटर ऑन. लेकिन ये सही है कि वर्ड हु दो साधारण वाक्यों को क्या कर रहा है? जोड़ा है. जोड़ता है ना. कनेक्ट मैंने जोड़ता है. तो शब्द हु, जो, दो साधारण वाक्य को जोड़ता है.
तो द वर्ड हु जो कनेक्ट टू सिंपल सेंटेंसेस, सो हु इज, हु क्या है, हु इज ए कंजंक्शन, क्या है कंजंक्शन, मैंने जुड़ने वाले शब्द को क्या बोलते हैं कंजंक्शन। अच्छा ये सही है। और आगे लिख सकते हैं द वर्ड हु इज used instead of the noun हरी। इसको देखो सेम चीज, वर्ड हु का प्रयोग किया गया है, वर्ड हु का प्रयोग किया गया है नाउन हरी के बदले, हरी प्रॉपर नाउन है, तो हरी प्रॉपर नाउन के बदले में हु का प्रयोग कर दिया गया है। तो हु क्या हो जाएगा, हु क्या हो जाएगा, हु जो है प्रोनाउन हो जाएगा, हु क्या हो जाएगा प्रोनाउन हो जाएगा। सही है। प्रोनाउन का डिफिनीशन क्या है, प्रोनाउन का डिफिनीशन ये है, सर्वनाम की परिभाषा ये है कि एक नाउन के बदले में एक शब्द का प्रयोग किया जाता है, उसी को क्या बोलते हैं प्रोनाउन बोलते हैं। तो यहां पर है ना नाउन हरी के बदले में हु का प्रयोग किया गया, द वर्ड हु इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ द नाउन हरी, नाउन हरी के बदले में हु का प्रयोग किया जाता है, किया गया है, इसीलिए हु क्या है एक प्रोनाउन है। और यहां पर क्या है कि हु क्या है, हु कनेक्ट किया है टू सिंपल सेंटेंस को, तो हु क्या है कंजंक्शन। तो हु एक पहलू से कंजंक्शन हो गया और हु क्या है प्रोनाउन हो गया। तो दोनों को टाल मिल मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा कंजंक्टिव प्रोनाउन। ये कंजंक्शन प्लस हु में हु दोनों काम करता है। तो यहां पर हम लिखेंगे हु डज, हु प्लेज, हु डज, हु करता है द डबल वर्क, हु डज डबल वर्क। यहां पर हु वर्ड जो है दोहरा काम कर रहा है, एक कंजंक्शन का भी काम कर रहा है, प्रोनाउन का भी काम कर रहा है, और डबल वर्क हुआ कि नहीं। तो एक जो है कंजंक्शन का काम किया और एक प्रोनाउन का काम किया, इसीलिए हु को क्या बोलते हैं, एक जो है पहला कर रहा है यहां पे कंजंक्शन का काम कर रहा है और दूसरा काम क्या कर रहा है प्रोनाउन का काम कर रहा है, प्रोनाउन का काम कर रहा है। इसीलिए जो है सो हु इज कॉल्ड कंजंक्टिव प्रोनाउन। बस यही डिफिनेशन है। हु जो है कंजंक्शन का काम कर रहा है, प्रोनाउन का काम कर रहा है, तो हु जो है डबल वर्क कर रहा है। हु क्या, हु डज द डबल वर्क, हु दोहरा काम करता है, डू मैंने करता है। तो हु करता है दो तरह के काम, एक कंजंक्शन का काम करे, प्रोनाउन का काम करे, इसीलिए हु इज कॉल्ड कंजंक्टिव प्रोनाउन। सही है, दोनों को मिला दो, कंजंक्शन पर प्रोनाउन मिल गए, कंजंक्टिव प्रोनाउन मिल गए। अब देखो हु जो है रिलेटिव प्रोनाउन क्या है, कैसे, इसको बारे में देखो, इसके बारे में सोचो। हु इज कॉल्ड ए रिलेटिव प्रोनाउन, तो यहां लिखेंगे, यहां इंप्लाइड डेट लगा दो, हु इज आल्सो कॉल्ड ए रिलेटिव प्रोनाउन। हु इज आल्सो कॉल्ड ए रिलेटिव प्रोनाउन, तो ही
हु इज ऑल्सो कॉल्ड ए रिलेटिव प्रोनाउन। क्यों कहते हैं रिलेटिव प्रोनाउन हु को? बिकॉज हु रिलेट्स। हु क्या करता है? रिलेट्स करता है। क्या करता है? रिलेट। रिलेट माने संबंध स्थापित करना। रिलेट माने तो हु संबंध स्थापित कर रहा है। हु रिलेट्स टू सम नाउन, टू सम नाउन गोइंग बिफोर। इसको समझो, इसको समझना पड़ेगा ना। हु इज ऑल्सो कॉल्ड ए रिलेटिव प्रोनाउन। हु इज ऑल्सो कॉल्ड ए रिलेटिव प्रोनाउन। हु को, जो को एक संबंध वाचक सर्वनाम बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? वजह बताना पड़ेगा। तो हु रिलेट टू सम नाउन गोइंग बिफोर, तो ये वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है। रिलेट करता है हु सम नाउन गोइंग बिफोर। तो हु देखो, हु वर्ड है, तो हु वर्ड जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में देखेंगे तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में या हु वर्ड है, तो हु वर्ड रिलेट कर रहा है। किसको रिलेट कर रहा है? टू सम नाउन, कोई नाउन है। गोइंग बिफोर मतलब हु के पहले। गोइंग बिफोर माने पहले, बिफोर माने पहले। तो हु के पहले यह लिखा है ना, टू सम नाउन, कोई नाउने होगा गोइंग बिफोर जो पहले होगा। तो हु के पहले कोई नाउन है, उसको क्या कर रहा है? रिलेट कर रहा है। तो कौन नाउन है हु के पहले? हु के पहले कौन नाउन है? हु के पहले हरि नाउन है। तो हु के पहले कौन नाउन है? हरि। तो यह लिखा है ना, हु रिलेट टू सम नाउन गोइंग बिफोर। तो बिफोर मैंने पहले, तो हु जो है रिलेट करता है। हु वर्ड संबंध स्थापित करता है कोई नाउन से जो पहले है। तो पहले कौन है? हरि। तो हु जो है, हु के पहले जो नाउन है हरि, उससे रिलेट करता है। इसीलिए क्या हो गया ये? हु क्या हो गया? रिलेटिव प्रोनाउन है। तो अब इसमें एक वर्ड ध्यान देने वाली बात है यहां पे, कि इसमें हरि जो है, हु जो है यहां पे बोर्ड में लिखेंगे, हु क्या है? हु जो है रिलेटिव प्रोनाउन है। हु क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन है। जहां रिलेटिव प्रोनाउन होगा उसका इंटीसीडेंट होगा। तो हु रिलेटिव प्रोनाउन है। हु रिलेटिव प्रोनाउन है व्हेन, कब है? हु रिलेटिव प्रोनाउन है जब हरि क्या है? हरि इज इट्स एंटीसीडेंट। क्या है ये? एंटीसीडेंट। इंपॉर्टेंट वर्ड है। क्या है? एंटी, ANTE, एंटीसीडेंट। एंटीसीडेंट मैंने क्या होता है? पूर्ववर्ती। क्या होता है? पूर्ववर्ती। पूर्ववर्ती का मतलब समझ में आया क्या होता है? पूर्ववर्ती माने हरि इज इट्स इंसिडेंट, एंटीसीडेंट। तो रिलेटिव प्रोनाउन हुआ। तो हु का एंटीसीडेंट क्या है? हरि है। वो कैसे? हु देखो, हु के पहले क्या है? हरि है। तो इसीलिए पूर्ववर्ती। पूर्ववर्ती माने पहले। तो हरि रिलेटिव प्रोनाउन है। जब हरि रिलेटिव प्रोनाउन है तो इंप्लाई दैट, हरि जब रिलेटिव प्रोनाउन है, कब है हरि रिलेटिव प्रोनाउन? हरि रिलेटिव प्रोनाउन थोड़े है। हरि क्या है? प्रॉपर नाउन है। हु रिलेटिव प्रोनाउन है। हु रिलेटिव प्रोनाउन है कब है? जब हरि हु का एंटीसीडेंट होगा।
हु का एंटीसीडेंट होगा। तो इन अदर वर्ड आई कैन से हरी इज द एंटीसीडेंट, ANTECDENT, हरी इज द एंटीसीडेंट of the relative pronoun who। बस रिलेटिव प्रोनाउन हु का एंटीसीडेंट क्या है? हरी। बस खत्म हो गया रिलेटिव प्रोनाउन। नेक्स्ट प्रोनाउन आई शैल टेक हियर नंबर 10, इंटरोगेटिव प्रोनाउन। इंटरोगेटिव प्रोनाउन। Interrogative pronoun I am going to discuss here. Interrogative pronoun means प्रश्नवाचक सर्वनाम। Interrogative pronoun means प्रश्नवाचक सर्वनाम। The pronouns which are used for asking questions, very simple. The pronouns are used the pronouns are used for asking questions. The pronouns are used, pronouns का प्रयोग करेंगे, pronouns का प्रयोग करेंगे किसके लिए? आस्किंग क्वेश्चन, क्वेश्चन पूछने के लिए प्रोनाउंस का प्रयोग करते हैं। बनाओ क्वेश्चन बनाओ। What do you like? क्वेश्चन बना दो। देखो What do you like? नोट ऑफ इंटरोगेशन। तो यहां पर देखेंगे जो व्हाट है, व्हाट क्या है? What do you like? तुम क्या पसंद करते हो? तुम क्या पसंद करते हो? हिंदी में इफ आई से तुम क्या पसंद करते हो, तो अंग्रेजी में बोलेंगे व्हाट डू यू लाइक। तो यहां पर व्हाट मीन्स क्या? तो इंट्रोगेशन कर रहा है, क्या प्रश्न पूछ रहा है ना, तुम क्या पसंद करते हो, व्हाट डू यू लाइक। तो व्हाट क्या है? इंटरोगेटिव प्रोनाउन है। क्यों इंटरोगेटिव प्रोनाउन है? क्योंकि ये जो वर्ब है, ये वर्ब डू क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। डू क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हेल्पिंग वर्ब डू है। तो डू है वर्ब के पहले, हेल्पिंग वर्ब के पहले क्या आया है? व्हाट आया। तो जो वर्ब के पहले जो आता है, जो वर्ब के पहले जो आता है वो क्या होता है? नाउन होता है या प्रोनाउन होता है? तो नाउन तो है नहीं व्हाट, तो क्या होगा? प्रोनाउन होगा। तो इसीलिए इंट्रोगेटिव, क्योंकि प्रश्न पूछा जा रहा है और वर्ब के पहले आया है व्हाट, इसीलिए व्हाट क्या हो गया? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। सही है। तो लाइक दिस यू कैन मेक मोर सेंटेंसेस ऑन दिस बेसिस। अगला लिखे ऑफ whom, ऑफ whom do you speak, do you speak, इसके बारे में समझो। ऑफ होम, ऑफ होम माने किसके बारे में? डू यू स्पीक, तुम किसके बारे में बोल सकते हो, तुम किसके बारे में बोल सकते हो। तो किसके बारे में के लिए हमने वर्ड लिया ऑफ होम। बोलते हो, तुम किसके बारे में बोलते हो? तो बोलते हैं जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है। जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, वह वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जाता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हेल्पिंग वर्ब डू होता है या डज होता है।
तो यहाँ यू के साथ हमेशा डू आएगा। तो ये जो सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, लेकिन सेंटेंस क्या है? इंटरोगेटिव सेंटेंस। ये ऑफ होम डू यू स्पीक, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है क्योंकि डू आया है, हेल्पिंग वर्ब डू आया है, और सेंटेंस हो जाएगा इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो आप होम किसके बारे में? यहाँ देखो डू हेल्पिंग वर्ब है, तो वर्ब के पहले आप होम आ गया है। वर्ब के पहले क्या आ गया है? आप होम आ गया है। आप होम किसके बदले में? नाउन के बदले में। वर्ब के पहले क्या आता है? वर्ब के पहले या तो नाउन आएगा, प्रोनाउन आएगा। तो आप होम नाउन तो है नहीं, तो क्या है? ये प्रोनाउन हो गया। दैट्स वाई यह प्रश्न पूछने का काम हो रहा है। तुम किसके बारे में बात करते हो? तुम किसके बारे में बोलते हो? आप होम डू यू स्पीक? आप होम डू यू स्पीक शुद्ध हिंदी होगा इसका, तुम किसके बारे में बोलते हो? बोलते लास्ट में ते आ गया, ते है, ते हो, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पे चला गया। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हेल्पिंग वर्ब क्या हो गया? डू आ डज। तो यू के साथ क्या लगेगा? डू। आप होम क्या है? किसके बारे में? तो प्रश्न पूछा जा रहा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है और वर्ब के पहले आप होम आया है, तो आप होम क्या हो जाएगा? प्रोनाउन हो जाएगा। और कौन सा प्रोनाउन? प्रश्न पूछा जा रहा है, इसलिए इंटरोगेटिव प्रोनाउन हो गया। एक और एग्जांपल आई शैल राइट हियर, व्हिच डू यू प्रेफर टी और कॉफी? तो हियर आई शैल राइट व्हिच डू यू प्रेफर, व्हिच डू यू प्रेफर, कामा टी आर कॉफी, नोट ऑफ इंट्रोगेशन। व्हिच डू यू प्रेफर, देखो यहाँ व्हिच डू यू प्रेफर, तो यहाँ डू आ गया ना, क्या आ गया यहाँ पर? डू आ गया। तो डू आने, डू या डज जब आएगा तो किस में जाएगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में चला जाएगा। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हेल्पिंग वर्ब डू या डज होता है। तो हिंदी बनाएंगे तो तुम यू माने तुम क्या पसंद करते हो, चाय या कॉफी? अंग्रेजी होगा व्हिच डू यू प्रेफर, टी और कॉफी। तो यहां देखो डू क्या? हेल्पिंग वर्ब, तो वर्ब के पहले व्हिच आ गया। व्हिच नाउन तो नहीं है, तो क्या है? प्रोनाउन है। और चूंकि वर्ब के पहले आया है तो ये प्रोनाउन हो गया। और चूंकि प्रश्न पूछा जा रहा है तुम क्या पसंद करते हो, टी या कॉफी, तो प्रश्न पूछने से किस में चला गया? इंटरोगेटिव प्रोनाउन में चला गया। तो व्हिच क्या है यहाँ पे? व्हिच इंटरोगेटिव प्रोनाउन है, व्हाट भी इंटरोगेटिव प्रोनाउन है, और आप होम भी क्या है? इंटरोगेटिव प्रोनाउन है। व्हाट, व्हिच, आप होम एटसेट्रा आर इंटरोगेटिव प्रोनाउन। इंटरोगेटिव प्रोनाउन मीन प्रश्नवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट 11 point I shall take here, exclamatory pronoun. This is the last pronoun I am going to discuss here. Exclamatory pronoun. कौन सा प्रोनाउन है? एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन। क्या है ये? बोला? एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन। हाँ, एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन। तो इसको बोलते हैं विस्मय बोधक सर्वनाम। क्या है ये? एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन, विस्मय बोधक सर्वनाम। Pronoun, a pronoun used as exclamation. A pronoun is used as exclamation, as an
एक्सक्लेमेशन। विस्मय बोध, विस्मय बोध, विस्मय बोध को क्या बोलते हैं? एक्सक्लेमेशन। जो एक प्रोनाउन होगा जो एक्सक्लेमेशन बताएगा, प्रयोग करें तो उसको एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन बोलते हैं। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल आई शैल राइट व्हाट स्टील हेयर। तो हियर आई शैल राइट एग्जाम्पल व्हाट, व्हाट, दिस इज, व्हाट के बाद दिस इज एक्सक्लेमेशन मार्क, स्टील हेयर, दिस इज आल्सो एन एक्सक्लेमेशन मार्क, व्हाट एक्सक्लेमेशन मार्क, स्टील हेयर एक्सक्लेमेशन मार्क। आगे लिखेंगे आई थॉट, आई थॉट, आई थॉट यू हैड gone home long ago, you had gone long ago, फुल स्टॉप। ये सेंटेंस देखो, व्हाट मीन्स क्या? एक्सक्लेमेशन मार्क, मतलब ये चिहुक रहा है। चिहुकने एक वर्ड आता है, चिहुकने का मतलब सरप्राइज। आदमी को हिंदी में बोलते हैं चिहुकना, भोजपुरी वर्ड है, लेकिन इन हिंदी सरप्राइज, अंग्रेजी में सरप्राइज, हिंदी में आश्चर्य, आश्चर्य का बोध होगा। किसमें क्या होगा? आश्चर्य का बोध होता है। व्हाट एक्सक्लेमेशन मार्क में आश्चर्य का बोध होगा। तो आश्चर्य, व्हाट, आश्चर्य प्रकट के, व्हाट स्टील हियर, जैसे तुम है, व्हाट स्टील हियर, स्टील मैंने अभी भी, तो क्या तुम अभी भी यहीं पर हो? मैंने सोचा था, आई थॉट, मैंने सोचा था, यू हैड गॉन लॉन्ग एगो, बहुत समय पहले ही तुमने चला गया। कुछ बातें समझ में आ रही है? आश्चर्य हो रहा है, व्हाट सरप्राइज कर रहा है, व्हाट स्टील हियर, अभी भी यहीं पर पड़े हो। आई थॉट, मैंने सोचा था, यू हैड गॉन लॉन्ग एगो, बहुत समय पहले तुमने चला गया। समझ में आई? तो ये आश्चर्य बता रहा है, व्हाट स्टील हियर, क्या अभी भी तुम यहीं पर पड़े हो? आई थॉट, मैंने सोचा था, यू हैड गॉन लॉन्ग एगो। तो ये जो है एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन का प्रयोग हुआ, ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में आ जाएगा। नेक्स्ट आई शैल टेक ओनली वन एग्जाम्पल हियर, व्हाट exclamation mark, you don't know Mohan, you don't know Mohan, और here I shall write full stop, not interrogation. What? You don't know Mohan, आश्चर्य हो रहा है। What एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है और एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन हो गया। What क्या है? एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन हो गया। तो what एक्सक्लेमेशन मार्क लगा दिया, तो एक्सक्लेमेशन मार्क यहां पर लगा दिया व्हाट के बाद। तो व्हाट किस में है? एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन में। यहां भी व्हाट एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन में। आश्चर्य हो रहा है, व्हाट क्या तुम मोहन को नहीं जानते हो? यू डोंट नो मोहन, तुम मोहन को नहीं जानते हो। आश्चर्य प्रकट हो रहा है। इसका मतलब कि तो उसने सोचा होगा, पूछने वाला व्यक्ति, कि मोहन को पहले ही जानता होगा, मोहन से अच्छी खासी दोस्ती पहले से बनी होगी। लेकिन जब वो पता चला तो आश्चर्य प्रकट किया। व्हाट, आश्चर्य हो रहा है उसको, व्हाट क्या तुम मोहन को नहीं जानते? तो इसका ही नहीं हो। तो व्हाट क्या हो गया? आश्चर्य बता रहा है, सरप्राइज बता रहा है। व्हाट के बाद एक्सक्लेमेशन मार्क है, एक्सक्लेमेशन मार्क है, तो व्हाट किस में चला गया? एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन में चला गया।
हियर व्हाट के बाद एक्सक्लेमेशन मार्क है तो ये एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन में चला गया, विस्मय बोधक सर्वनाम जिसको बोलते हैं। तो दीज आर द pronouns I have discussed here. There are 11 kinds of pronoun available in English grammar. In lecture 12, lecture 12A, lecture 12B, I have explained in detail all the 11 kinds of pronouns available in English grammar. Now the chapter of pronoun is over today. Okay, thanks.